Greetings to everyone, and a very warm evening to one and all, and our dear viewers. I am Miss Mrinali. I welcome you all on the platform of Chinamangal Maharashtra Beats for the fourth episode of Motivational Monday with Mrinali. It's my honor to welcome today's guest, Dr. Atul Vadegaonkar, who has achieved a doctorate, who is a doctorate holder, an IIT alumnus, and has 35 plus years of experience in research. You are most welcome, sir. Good evening to all. It's really pleasure to have you here. JMB team is really grateful to all the viewers who shower upon us their unconditional love and appreciation. आपने जो पहले एपिसोड में हमें ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, बधाइयाँ दी, वो एपिसोड बुक्स को था, डॉक्टर अतुल वाडेगांवकर सर के साथ ही था। उसके लिए जेएमबी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगी। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। Now, let's know a bit about dynamic personality. Today we have with us Dr. Atul Vadegaonkar sir. It's really pleasure to know about him, and even when he speaks, to know everything, the knowledge he shower upon us with versatile Hindi as well as English. So he is a doctorate holder and an IIT alumnus, has extensive experience of 35 plus years in research, digital transformation, and strategic business management. As a chief general manager of MKCL, he had created strategies, development, and execution plan for softwares related to student lifecycle management, online admissions, web-based recruitments, library management, and e-governance. As former MD of Rajasthan Knowledge Corporation Limited, gave the company of 15x in just 3 years from loss-making entity to a profitable one. Currently, he is giving his knowledge and advice to so many institutes. Really profound. I welcome you Thank all and let's begin our today's session. तो आज की जो थीम है वो है डिजिटल वर्ल्ड एंड अवर वेलबीइंग। तो हमारा जो वेलबीइंग है हम सबको पता है बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर रहता है। हम आजकल दो दुनिया में रहे, एक हमारी खुद की दुनिया जहाँ पे पौधे हैं, हरियाली है, देर आर रिवर्स, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, आजू बाजू में लोग हैं। और दूसरी दुनिया है जहाँ दिन चालू होता है, गुड मॉर्निंग अलेक्सा, फिर हम आते हैं टेलीविजन पे, अलेक्सा, टैबलेट्स, लैपटॉप, मोबाइल एंड व्हाट नॉट। So this is our second world, E-world. Without E-world, gadgets and technology, आज की दुनिया क्या हम जी सकते हैं? शायद नहीं. So let's explore this digital world, but keeping the balance between our life and these gadgets through today's talk with Dr. Atul Vadegaonkar under the theme Digital World and Our Well-being. Sir, I would like to have one question. Yes, Like, please. हमारे क्या challenges है? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चैलेंज जब आते हैं तो उसकी खूबसूरती ये है कि हम उन्हें कैसे निभाते हैं, फेस करते हैं. So I would like to ask, what are the challenges today we are facing and how to face them, how to tackle and handle them? Over to you. Right. I take this question from this digital challenges context, let us say, because physical challenges are there and were there also. This is a new area wherein virtually so many challenges are coming and they are quite significantly affecting our physical being also. The reason behind is that the speed of change
Change has been a constant factor. The only thing that is permanent is change, it is said. But if we look at the current scenario, the rate of change is very fast. And if I compare it with the chessboard, we are into the second half of the chessboard, wherein successive doubling is happening and the rate of change is very fast. That is one aspect. A good example is that we call it as successive doubling of lilies in the pond. पहले दिन एक लिली अगर तालाब में है, उसके बाद दूसरे दिन दो, फिर चार, फिर 8, फिर 16, ऐसे बढ़ते जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि आधा तालाब भरा होता है। आधा तालाब भरने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन आधा सा पूरा होने में एक ही दिन काफ़ी होता है। So that makes challenge even. So we are in the second half of the chessboard where the doubling effect is very high. Second thing is that we are overloaded by the information. So much of information is there with us that we find selection very difficult. Like if you go to YouTube, there are lakhs of songs. If you go to TED Talk, there are thousands of talks. If you go to Amazon, lakhs of items to be purchased. If you go to Swiggy, Zomato, hundreds of food items are there. And then what happens, because of this abundance of information and choices, we fail to take decision, and then we the system suggests whatever, we go by that. So that means what is happening is that because of the overload of information, the decision making is getting outsourced. That is a very big challenge. So if we look at these challenges, but this is a mega trend. We cannot avoid it. The question is whether we are able to ride it or not. इसके ऊपर सवार होकर जिंदगी संवारना है कि इसमें डूबना है, ये हमारी चॉइस। अगर हमारे को हमारा अपना आध्यात्मिक और भौतिक विकास करना है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, it is essential that we ride on these technologies and judiciously use it. These technologies are anywhere, anytime, but we have to judiciously use it at suitable time in a suitable manner. If we do that, and probably we can exploit the benefits of both the world. True. जैसे कि आपने कहा राइडिंग द टेक्नोलॉजी एंड राइडिंग इवन, यस आई एब्सोल्युटली एग्री कि देयर इज नो एस्केप, बट इसमें जो एक मेन बात आती है कि हाउ टू रीडिफाइन दिस इक्वेशन ऑफ अस विद द टेक्नोलॉजी। Right. Let us first understand what type of relationship we are maintaining. Many a times we are not aware of what type of relationship we are carrying with our gadgets. राइट। Statistics suggest that on an average, an individual touches his mobile 76 times. ओ माय गॉड। अगर वो 8 घंटा सो रहा है तो 16 घंटे में 76 times he is touching the phone. And this is a small number when we compare it with how many times we are swapping it. It is 2617. So we are swapping the phone 2617 times. And this is the major source of distraction. And a 3 to 5 minute distraction require almost 21 to 25 minutes to regain our focus. So the moment we quantify it this way, then probably we are in a position to understand the gravity of our relationship with the gadget which is with us. One more thing is that we have been gradually becoming screenagers. Previously that screen was a bigger one and it was about 8 feet away from us TV. True. Then desktop, laptop, couple of feet away, and screen couple of inches or few inches away. So the more it is coming to the closer, it is becoming more and more personalized. At the same time, it is intervening our personal life also. Absolutely. So when you are reading, suppose you are reading a Kindle, you are not only reading Kindle, but Kindle is also reading you. So what speed you are reading,
what type of material you are reading, what type of words meaning you search. So all this, so accordingly, they understand you better. Same is the case with the, Facebook. A couple of clicks, if more than 100 clicks, they know more than your parents know about you. So once we understand that this is what is happening when we are using these gadgets, then it is possible. Once we understand the relationship, then the next step is redefining our relationship with these gadgets. Why? Let us talk more about the smartphone only because it is in our pocket every time, very close by, and we are touching it so many times. So if at all we want to say redefining the relationship with the technology, we have to redefine our relationship with this smart piece of इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. अब वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो स्मार्टफोन का सबसे अस्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. हमको ये Absolutely. भी नहीं पता कि हम उसका इस्तेमाल कितना कर. एक डिजिटल वेलबींग नाम का सॉफ्टवेयर आता है एंड्रॉइड्स फोन में. इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, कॉलिंग, गूगलिंग, व्हाट्सएप, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. And if you check with the teenagers, probably 6 to 7 hours time you can find there. So this is also, first thing is that quantifying how much time we are spending, where we are spending, and what type of relationship we are developing with it, and what advantage and benefits we are getting. Once we know that, then redefining starts. Correct. Even the numbers of swapping the phone and even turning on the screen is just shocking कि हम indirectly वो चीज करते हैं but we are completely unaware of that thing. Correct. And even we all know कि we should not look the mobile first thing in the morning. But आदतें ऐसी हो गई है या उस पर डिपेंडेंसी हमने ऐसे बनाई है कि मोबाइल हमारा अलार्म है, मोबाइल हमें रास्ता दिखाता है, मोबाइल हमें सब कुछ करवाता है. सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम इट और रादर देन हाउ टू यूटिलाइज द मोस्ट प्रेशियस मॉर्निंग 1 hour एंड मोर देन दैट कि उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं या हमें वो सुबह का जो 1 घंटा है मान लो फ्रेश फर्स्ट आवर क्यों यूज नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर वो अवेयरनेस बच्चों में या बड़ों में आया तो यस वी कैन मेक अ बेटर चॉइस एंड वी कैन सेट दैट इंटेंट नॉट टू टच द मोबाइल एटलीस्ट फॉर द मॉर्निंग 1 hour. What is there so special in the first 1 hour is to be understood first. Correct. When we are in our typically deep sleep, so that time delta waves are in the brain. But जब हमारी नींद खुलती, हल्की खुमारी होती है जिसको कहते हैं, नींद की उठे रहते हैं लेकिन खुमारी रहती है. So that is theta state. And in that theta state, if you critically observe, thoughts they do come frictionlessly. आपको पता ही नहीं होता आपके सामने से विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा हो रहा होता है. उसके बाद का जो स्टेज है वो है अल्फा, जब हम जाग जाते हैं. और जब हम जाग जाते हैं तो आप देखिएगा, आंख खुली रखते हैं ना, कोई पूछता है क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसा जवाब आता है. सो इट मीन्स दैट इज द स्टेट वेयर वी आर इन अ थॉटलेस स्टेट. और उसके बाद आता है बीटा, जब हम अवेक होते हैं. अभी हमारा प्रॉब्लम कैसा हो गया है कि जब हम थॉटलेस होते हैं या जब फ्रिक्शनलेस थॉट्स आ रहे होते हैं, तो ये इस समय हम हमारे सबकॉन्शियस से ज्यादा कनेक्टेड. ओके. सबकॉन्शियस की ब्यूटी क्या है? एफिशिएंसी आदमी की सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस में. मैं डिफरेंशिएट करके बताता हूँ आपको. अगर आप ड्राइविंग जब शुरुआत में सीख रहे होते हैं तो इतना फोकस होता है कि वो कोई टेप लग जाए या कोई आवाज आ जाए तो डिस्टर्ब हो जाते हैं. सब शांत रहो, मुझे गाड़ी चलाने दो, ऐसा इतना फोकस होके करते हैं. जैसे जैसे हम वो 20-21 दिन का पीरियड हो जाता है, हम सीख जाते हैं,
वो ड्राइविंग के स्किल्स जो है हमारे सबकॉन्शियस पर चले आते हैं। उसके बाद हम बातें कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, गाने का मजा ले रहे होते हैं, और ड्राइविंग में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। सो ये सबकॉन्शियस में जाने के बाद होता है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम उठते ही इमीडिएटली वो कोई अलर्ट आया है क्या, कोई मैसेज आया है क्या, देखिए। हमें हमारे बारे में ये गलतफहमी है कि हम दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती है कि अगर हमने मोबाइल नहीं देखा तो दुनिया डूब जाएगी। अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ जब आप सोए थे रात भर तब दुनिया नहीं डूबी, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ा। तो आपके घंटा भर बाद मोबाइल देखने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और सच में इतनी कोई बहुत दुर्लभ चीज या घटना होने वाली होगी तो कॉल आ जाएगा, आप उठा लीजिए। लेकिन खुद होके वो न्यूज अलर्ट जिसमें कि कोई भी, या तो फिजूल का ज्ञान बांटने वाले व्हाट्सएप होते हैं, और नहीं तो मेल होते हैं। कोई भी मेल बधाई देने के लिए आजकल नहीं करता, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये बताने के लिए करता है, या मैसेज अलर्ट्स। सो हम अननेसेसरीली वो रिलैक्स मूड से इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं तनावपूर्ण वातावरण। मॉर्निंग ही हम तनाव से शुरू करते हैं, एंड देन जो चीज शुरू करते हैं उसी को हम बिल्ड करते जाते हैं। आदमी एक आधा खराब गाना सुन ले सुबह, सख्त नापसंद है उसको, फिर भी सारा दिन गूंजता रहता है। जो चीज हम झुठला रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, वो सुबह सुनी होने की वजह से सारा दिन अगर आपको याद दिला रही है, तो क्यों ना हम उस समय का उपयोग कोई अच्छी चीज करने। अब अच्छी करेक्ट। चीज क्या है, वो आपके व्यक्तिगत गोल्स पे डिपेंड करता है। आप सेहत के लिए डिवोट कर सकते हैं वो 1 घंटा योगासन व्यायाम के लिए। आप 1 घंटा सीरियस रीडिंग के लिए कर सकते हैं। आप 1 घंटा सीरियस राइटिंग के लिए कर सकते हैं। आप मेडिटेशन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सबसे कम फ्रिक्शन होता है और आप सबकॉन्शियस के बहुत बहुत करीब। वर्किंग मेमोरी भी खाली होती है, तो जो चीजें वहां जा रही होती है वो बड़ी आसानी से दिमाग में जाती है। दिन भर में वर्किंग मेमोरी चोक हो जाती है। आप देखिए आपके मोबाइल में भी आप वर्किंग मेमोरी बनने के बाद वो क्लियर मेमोरी करते हैं, और 3 GB 2 GB क्लियर करने के बाद परफॉर्मेंस आता है। आपका स्मार्ट टीवी भी, उसकी अगर वर्किंग मेमोरी क्लियर ना करो तो वो यस, स्लगिश यस। परफॉर्मेंस देने लगता है। तो ये हमारे साथ भी होने लगता है। तो बेहतर ये होगा कि वो जो डेल्टा वेव्स हैं, थीटा वेव्स हैं, अल्फा वेव्स हैं और बीटा वेव्स हैं, ये हमारे मानसिकता को, हमारे संतुलन को कैसे बनाए रखती है, एक बार समझ ले तो ये संभव है। और जनरली सोते समय अगर मोबाइल दूर रखें तो कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल से ही अलार्म उठाने की जरूरत है क्या? एक अलार्म क्लॉक ले आइए ना, 50 रुपए का मिलता है इतना सब। इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल डबिया तो इतनी सस्ती मिलती। अलार्म आप जानबूझकर वो डबिया में लगाइए, मोबाइल रख दीजिए दूर। तो सबसे पहले जो मोबाइल उठाने की जो प्रक्रिया है वही टाल सकते हैं। एक बार हाथ में आ जाने के बाद देखो कैसा है, अननेसेसरी हर जगह पर विल पावर चेक नहीं करनी चाहिए। मैं विल पावर चेक करने के लिए सामने सिगरेट रखूंगा पीऊंगा नहीं, अरे ये तो बेवकूफी है ना। इतनी विल पावर देखिए कितना कॉग्निटिव लोड सिर पे और अपने बदन पे ला रहे हो। तो ऐसा कॉग्निटिव लोड भी नहीं लाना, अननेसेसरी विल पावर के भरोसे करने की कोशिश नहीं करना। सबसे बेहतर होगा कि पहले एनवायरनमेंट चेंज करो। तो मोबाइल से दूर रहना, ये सबसे, हमको जो सबसे पहला काम करना होगा सुबह घंटे के लिए, ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर तो है ही जिंदगी रोज की। करेक्ट। उसके अलावा एब्सोल्युटली। अगर हम जो डिजिटल वेलबींग सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बात किया कि भाई, अगर आप, मैं अभी आपसे ऐसे ही पूछूं ना कि आप कितना मिनट फेसबुक पे देना चाहते हो, तो आपके मिनट्स आप बहुत कम बताने वाले। और अगर आप आपका डिजिटल वेलबींग सॉफ्टवेयर देखोगे तो पता लगेगा घंटा भर आपने फेसबुक पे बिताया है, घंटा भर व्हाट्सएप पे बिताया है। तो आपको जो रीजनेबल टाइम लगता है वो आप पहले सेट तो कर दीजिए। उसके बाद वो ऐप अपने आप डिसेबल हो जाता है, व्हाट्सएप डिसेबल हो जाएगा, फेसबुक डिसेबल हो जाएगा, गूगल डिसेबल हो जाएगा। और आपको फिर लगता है जरूरी है तो आप इनेबल तो कर सकते हैं। तो इस ढंग से अगर आप अपने टाइम फेसिंग भी करेंगे, और एनी टाइम एनीवेयर के बजाय दिस टाइम एंड दिस प्लेस। जैसे एब्सोल्युटली। मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रैक्शन, एक 3 मिनट का डिस्ट्रैक्शन रिस्टोर करने के लिए 25 मिनट लगते हैं। तो आप अगर बीच बीच में मोबाइल टच कर रहे हो तो आपकी सारी एनर्जी तो आपका फोकस लाने में ही चली जा रही है। तो बेहतर है आप तय कर लीजिए कि 9:55 से 10 मैं मेल और व्हाट्सएप चेक करूंगा, 11 से 11 पर, ऐसा 5-5 मिनट दिन भर दीजिए। उस वक्त आप ब्रेक भी हो जाते हैं, पैदल भी चल लीजिए, जगह से भी उठ जाइए, वो भी जरूरी है आपके लिए। सो मोबाइल के साथ भी रहना होता है, फिजिकल मूवमेंट भी होती है और कंट्रोल भी होता है।
And you suggest to plan our day-to-day activities in such a way that the time is Perfect. distributed in the right manner so that we utilize the technology and even we are not overusing it. तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें एक फैक्टर आता है कि टीनेजर्स या यंगस्टर्स दे आर वेरी मच फ्रेंडली विथ इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, ऑनलाइन बैंकिंग बोलो, बट एज वी प्रोग्रेस एक हमारे पास और एक एज ग्रुप आता है कि जो इन सब चीजों के आदी नहीं है, दे आर नॉट हैबिचुअल टू इट. So, can you throw some light on, and we all know कि हमें जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए being a human. So, lifelong learning and intentional learning कि क्यों करना है और कैसे करना है. हाँ, इसका कैसा है कि जैसा कि आपने शुरुआत में ही बात की थी कि रेट ऑफ चेंज बहुत बढ़ रहा है। अगर चीजें इतनी स्पीड से बढ़ रही हैं, तो मुझे उतनी ही चीज स्पीड से सीखना होगा अगर सरवाइव करना है। अगर सीखना होगा तो इंटेंसिटी के साथ सीखना होगा, अल्ट्रा लर्निंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होगी। और किस लिए सीख रहे हैं, ये इंटेंशन भी क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी नॉलेज कंज्यूमरिज्म। अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ बोलते, उस उद्देश्यहीन है वो। मुझे नई नई जानकारी मिल रही है, व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहा है, उससे मिल रहा है, फाइन। बट वो करने का इंटेंशन क्या है? समय गुजारना इंटेंशन है कि सीखना, कि उबरना इन सब चीजों से? द मोमेंट यू डिसाइड व्हाट इज द फोकस, देन अदरवाइज लोग अटेंशन इकोनॉमी में आपको बुला ही रहे हैं ना, कि आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, आप यू लुक एट दोस थिंग्स एंड बाय और स्पेंड टाइम। मतलब देखिए, जो फ्लो मोड में ले जाते हैं वो, जब आप इंस्टाग्राम या इस पे जा रहे होते हैं ना, आपको समय का पता ही नहीं लगता, कैसीनो में जैसे होता है। और इतिहास ऐसा ही है, जब आप जुआ खेल रहे होते हैं, भूल जाते हो सब कुछ। मतलब महाभारत का इवेंट याद करो, Correct. परम ज्ञानी व्यक्ति भी उस फ्लो में भूल गया क्या क्या दांव पे लगा गया। और हमारे पास समय दांव पे लगाने के लिए हम वही दांव पे लगाते जाते हैं, जबकि वही इस्तेमाल करने की चीज है। तो इंटेंशन तो बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन करने होंगे, अदरवाइज आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चीजें हैं। these these थिंग्स आर डिजाइन टू हुक यू अप, डिजाइन टू हुक एंड डिजाइन फॉर ऑब्सोल्यूशंस, आपको बार बार चीजें बदलने के लिए कहते हैं। ये तो लर्निंग का हो गया. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स लिटरेसी. And I want you to throw some light on data literacy, digital literacy, and financial literacy. अभी जैसे मैंने कहा ना कि भाई हमें उद्देश्य तो डिसाइड करने होंगे, कि अब कुछ चीजें ऐसी है कि देयर आर फ्यू थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड यू मस्ट, योर डेटा इज गेटिंग मिसयूज्ड। आपको गलत, आपका फोन नंबर से कोई गलत कॉल आ जाता है कि पैसे भरिए नहीं तो ये होगा वो होगा। तो आपका डेटा प्राइवेसी के बारे में आपने बहुत कॉशियस होना चाहिए। तो ये जब तक कि आपको नहीं रहेगा, देखिए अब आरबीआई हो गए, सब लोग हैं, ये लोग बार बार मैसेज भेजते रहते हैं कि आप फिशिंग साइट्स पे मत जाएं, अननोन साइट पे मत जाएं, अननोन व्यक्ति को फोन नंबर न दें, अननोन व्यक्ति से सोशल मीडिया पे कनेक्ट ना हो। तो ये सब डेटा कैप्चर करके उसका गलत इस्तेमाल। जहां तक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है, कि एक समय था कि भाई बैंक से पैसे निकाल लिए और एफडी बना लिए, ये दो ही लिटरेसी के कंपोनेंट। अभी ऐसा नहीं रह गया। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ अर्निंग मनी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। 50 के उम्र होते होते आपके जॉब की पॉसिबिलिटीज कम होती जाएगी। तो आपने 50 की उम्र तक जो पैसा जमाया है, वो इस ढंग से इन्वेस्ट करना चाहिए कि फाइनेंशियली बाद में सेकेंडरी इनकम करके वो आते रहे और आप कुछ और भी करते रहे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर सर्वाइवल इट इज वेरी वेरी इसेंशियल। अब आईटी लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी में अभी एआई ड्रिवन लिटरेसी भी आ गई है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है। जैसे आप यूट्यूब पे कोई चीज देखते हो तो वैसी ही चीजें आने लग जाती। आपने ये समझना चाहिए कि ये अल्गोरिथम्स हैं, ये आपको बार बार वही चीज देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं और आप बायस्ड होते जा रहे हैं। तो जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, तो एक समझना चाहिए कि जो क्लाउड पे है या सर्वर्स पे है, हम सबको ला रहा है, तो इट इज यूनाइटिंग, बट द अल्गोरिथम्स आर डिवाइडिंग अस। Correct. हम्म।
कमिंग बैक टू अगेन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्या ऐसी कुछ स्किल्स है? आर देयर एनी सम सेट ऑफ स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग? टिपिकली इंटेंशनल लर्निंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर हमको पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों है और इसको शिद्दत से करने की जरूरत क्यों। इंसान जो है ना, वो ज्यादातर वक्त भूतकाल में रमने की कोशिश करता है, या भविष्य भी उतना ही, जो वर्तमान को खींच के भविष्य तक ले जा सके उतना ही भविष्य दे। इसके चलते क्या हो जाता है कि हम हमारे फ्यूचर सेल्फ के बारे में एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं कर पाते। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। किसी को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर उनको बताते हैं कि खाने पे ये परहेज करो, ये गोलियां लो, सो ऐसे एक्सरसाइज करो। 90% लोग इसको 100% ऑब्जर्व नहीं करते। वो क्या कहते हैं, अभी मैंने कल एक्सरसाइज नहीं किया था, कल मीठा नहीं खाया, आज देखो बढ़िया, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो दिस वे, जस्ट 2 days experience they extrapolate for entire life. So when it comes to your death, life and death, डॉक्टर told you that कि आपका जीना, अच्छी सेहत इन चीजों पर डिपेंड है। फिर भी आप, since you cannot imagine your future self correctly, you lack in discipline and you fail to observe the suggestions and directives and instruction given by the doctors. So learning, from that context, it is very, very less important for a human being. Why? Because उसका इफेक्ट तो 2 साल बाद दिखता है, 3 साल बाद दिखता है। अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, कोई चीज नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान 3 साल बाद दिखता है। 3 साल का फ्यूचर हम फ्यूचर सेल्फ बना ही नहीं पाते। तो इसलिए इंटेंशनल लर्निंग को बहुत डिजाइन से करने की जरूरत है, क्योंकि बाय डिजाइन हम लोग छोड़ने की आदत ज्यादा रखते हैं। तो अगर हमको इंटेंशनल लर्निंग करनी है, लाइफ लॉन्ग करनी है, तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम छोटे छोटे गोल तैयार करें और एकदम क्लियर होने चाहिए, जिसको मेजर करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि चीजें बहुत फास्ट बदल रही हैं, तो आपको लर्निंग की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, स्किल अपग्रेड करने की जरूरत है। तो 2 तरीके से हम टारगेट सेट कर सकते हैं। मैं एक टारगेट ऐसा सेट कर सकता हूँ कि मैं साल भर में 12 किताबें पढ़ूंगा और साल भर में 10 ऑनलाइन कोर्सेज करूँ। मैं मोटा हिसाब, महीने सवा महीने में एक कोर्स। और हम में से सब कोई ऐसे टारगेट करते रहते हैं। न्यू ईयर को देखिए आप, 31 तारीख को ये सब आने लगता है, 1-2 तारीख तक रहता है, 15 तारीख तक सब धुल मिल जाता है। तो क्या होता है, ये टारगेट है, बड़ा है। ये मैराथन दौड़ने का टारगेट सेट करेंगे, पहले घर से बाहर पैदल निकल तो के चलना 10 सीखो। किलोमीटर दौड़, 10 मिनट तो दौड़ के आओ। So let us set a target something like this. I will read 10 to 15 pages per day, which is possible. You can read it in 2-3 slots. So if you read this way, if you set this target something like this, and don't take it for all 7 days. Everything take it for 5 days a week. जैसे 5 वर्किंग डेज वीक, वैसे ये सब हमारे वर्किंग डेज के कॉम्पोनेंट के हिसाब से मैं हफ्ते में 5 दिन 10 से 15 पेजेस पढ़ूंगा। तब भी आप एक महीने में एक 200, 250, 300 पेज की एक किताब पढ़ लेते हो। 12 किताब का आराम से हो जाता है। ऑनलाइन कोर्स है जो कि आपको स्किल अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक है, नहीं तो ये आपके जॉब में से आप ऑब्सोल्यूट होने वाले हैं। अगर आप ये तय करते हैं कि मैं 15 मिनट रोज ऑनलाइन कोर्स करूंगा, तब भी आप देखेंगे कि 5 दिन में आपके कितने मिनट हो जाते हैं। Correct. Even I remember what you had said in last episode to add it, to just review it, कि आप अलग अलग रूम में भी अलग अलग किताब रखोगे, और जब हम्म। आपका इंटरेस्ट आता है और अगर आपको बुक पसंद आई, तो यू आर सेटिंग योर टारगेट फॉर लेट्स से करेक्ट। 5 to 7 पेजेस, लेकिन इनडायरेक्टली आप 10 पेजेस, 12 पेजेस, 15 पेजेस कब पढ़ोगे, ये आपको भी खुद आपको को पता है। रियलाइज नहीं होगा। अच्छा, जैसे 10-15 मिनट ऑनलाइन स्किल अपग्रेडेशन इज ए वेरी इसेंशियल फॉर ऑल वर्किंग क्लास। तो मेरा जब ऑफिस 5:30 बजे खत्म होता है, मैं बाय डिजाइन तय करूं कि 5:30 से पौने 6, 15 मिनट कोर्स किए बगैर मैं ऑफिस से बाहर नहीं निकलूं। बॉस ने बुलाया तो घंटा भर रुकते हैं, फिर खुद को बॉस बनाकर 15 मिनट क्यों नहीं रोकते हम। तो इफ दैट इज फर्स्ट स्टेप, सेट स्मॉल क्लियर गोल्स। आपको जो हासिल करना है, सेहत हासिल करनी है, तो उस हिसाब से गोल, इतने देर दौड़ना, इतना, ऐसा छोटा सा। आध्यात्मिक है तो मैं
मेडिटेशन करूंगा, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन वो बहुत मेजरेबल होने चाहिए। ये जैसे ही हो जाता है, उसके बाद अब हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शंस है, और एक आदरणीय मोबाइल तो जेब में लेके ही घूम रहे हैं। सो आई वुड एक्चुअली कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि जो डिस्ट्रैक्शन और फोकस आता है, तो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कैसे किया जाए और फोकस पे कंसंट्रेट कैसे किया जाए? एनीवेयर एनी टाइम के बजाय, जैसे अभी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है हमारा मोबाइल है, ये हम सभी मानते हैं और जानते भी। अगर उस पर कंट्रोल आ गया तो बहुत सारी चीजों पे आ गया। उसको एनी टाइम एनीवेयर के बजाय दिस टाइम दिस प्लेस एंड दिस मच टाइम ओनली, This time, this place, this much time. Perfect. दैट्स इट। द मोमेंट वी पुट इट दिस वे, डिस्ट्रैक्शंस और कैसे इन्वायरमेंट बदलने की बात आती है। जैसे मैंने कहा, सुबह अलार्म जो है वो अलार्म वाली घड़ी 50 रुपए की ले आई, गुड इनफ। अभी हम स्मार्ट वॉच में ही मोबाइल भी कनेक्ट किए हुए हैं, उस पर व्हाट्सएप दिख रहा है, उस पर फोन दिख रहा है। तो अदरवाइज वो ऐसी स्मार्ट वॉच लें कि जिसमें कि ये सब इसके साथ, मोबाइल के साथ कनेक्ट ना हो, कम से कम रात में तो कुछ भी अपडेट ना हो, सिर्फ वही अलार्म बजे मोबाइल, वॉट एवर इट मे बी। तो हमने ये सब डिस्ट्रैक्शन जो है, वातावरण बदलने की जरूरत है। उठ के रोज सुबह उठ के उस कमरे में बैठेंगे जहाँ शांति है, तो वहां पर हो सकता है ना, तो एनवायरनमेंट बदले और डिस्ट्रैक्शन कम करने के अटेम्प्ट्स लें। जितना हम इस पे कोशिश कर पाएंगे, उतना गोल के तरफ बढ़े। Exactly. लेकिन ये सब होते हुए भी ना, हम एज इंसान को ये बहुत जरूरी है कि उसको फीडबैक मिलता रहे कि मैंने जो गोल सेट किए हैं, मैंने जो डिस्ट्रैक्शन दूर करने की कोशिश की है, क्या मैं इसमें सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। तो एक्टिव और एक्शनेबल फीडबैक। हम लोग जनरली आमतौर पर, हाँ सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत। अरे ठीक के मायने क्या है, कुछ तो बताओ, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वी शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन दिस, कि ये कहना चाहिए कि आप में इम्प्रूवमेंट तो है। पहले मैं देखता था आए दिन आप मोबाइल पे ही बैठे रहते थे, करीब 5-6 घंटा दिखते थे, अभी 3 घंटा हो गया। लेकिन 3 घंटा भी बहुत ज्यादा है, आप इसको 2 घंटा कर सकते हो। ये एक्शनेबल। आप पढ़ते हुए दिखते हो, लेकिन पढ़ते वक्त आपका फोकस नहीं रहता, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई ऐसा मेजरेबल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फीडबैक दे, तो ऐसे लोगों से हमने हमारे गोल भी शेयर भी करने की जरूरत है, कि जिससे फीडबैक हम ले सकें। और वो फीडबैक को क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशन के रूप में लेना जरूरी। जब हम Absolutely. ये पायदान पार कर लेते हैं, उसके बाद आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जो भी गोल सेट किए हैं या डिस्ट्रैक्शन अपन ने दूर किया है, एक्शनेबल फीडबैक ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई चीज अगर हम 21 दिन लगातार करें तो वो हमारी आदत में शुमार हो आदत बन जाती है। जाती है। अभी तो हमारी आदतें इतनी खराब हो गई कि 21 दिन में सुधरने वाली परिस्थिति नहीं है। अगर तो लंबे समय तक खींचना ही पड़ेगा। तो हम उसको जब लगातार 21-21 दिन तक प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब वो हमारी सेकंड हैबिट हो जाएगी। सेकंड हैबिट हो जाएगी तो इट विल गो इनटू सबकॉन्शियस माइंड, एंड यू विल डू इट विथ लेस एफर्ट्स, कॉग्निटिव लोड, फ्रिक्शन लेस होने लगेगा वो सब। जब वो फ्रिक्शन लेस होने लगेगा, उसके बाद भी एक स्टेज और है। ये रोज ही थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन कम होगा जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो दैट इज प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन। लोगों से फीडबैक लेना और प्रैक्टिस करना बात अलग है। खुद से भी बात करने की जरूरत है कि मैंने जो सेट किया है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो मेरी कोशिशें हैं, वो सही है नहीं, मेरा बर्ताव सही है नहीं, मैं काम सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये सब का रिफ्लेक्शन जब तक नहीं होगा, करेक्टिव मेजर्स के लिए इंटरनल मोटिवेशन नहीं। So अब ये you are saying रिफ्लेक्शन, that to have some kind of self-talk during some करेक्ट, specific period of day. इंट्रोस्पेक्शन। Yes, अब ये कौन से पीरियड पे, स्पेसिफिक पीरियड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। absolutely. हिस्टोरिकली लोग कहते थे कि रात में रिफ्लेक्शन करो, और जब स्पीड लाइफ की कम थी, चीजें बहुत स्लो बदलती थी, तो ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले इवेंट्स दिन भर में बहुत ज्यादा होते नहीं थे। तो आप शांत चित्त सोच सकते थे रात में, और बिना सिर को तकलीफ दिए बाद में सो सकते थे। रिफ्लेक्शन हो गया, सोच लिया, चलो अब सो जाओ। अभी दिन में इतने वर्क प्रेशर्स, इतने सिचुएशंस आते रहते हैं चैलेंजिंग,
कि अगर रात में उसको रिकॉल बटन दबाए तो रात की क्वालिटी नींद की खराब होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। रात में नींद ही नहीं आएगी। और उस वजह से क्या है कि कई लोग, और नींद की क्वालिटी खत्म खराब हो गई तो सुबह का 1 घंटा नहीं मिलने वाला, आपको वैसा चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे लोग ये नींद की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी कहते हैं कि ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ 3-2-1। I would like to know about the principle of 3-2-1. 3 घंटा पहले खाना खा ले सोने से, 2 घंटा पहले पानी पी ले, और 1 घंटा पहले स्क्रीन वगैरह डिजिटल जो भी है चीजें उससे दूर हो जाए, किताब ही पढ़े थे। तो इससे क्या हो जाता है, 2 घंटा पहले पानी पीने के मायने ये है कि आपको नींद से उठ के टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा। Absolutely. 3 घंटा पहले खाना खा लेते हैं तो हाजमा वगैरह सब रेडी हो जाता है। तो इस ढंग से 3-2-1 वो प्रिंसिपल करना होगा। आज के कंटेक्स्ट में अगर मुझे कोई पूछेगा कि सबसे अच्छा समय कौन सा है इंट्रोस्पेक्शन करने का, तो व्हेन वी आर डूइंग मॉर्निंग प्रेयर और इवनिंग प्रेयर, that moment we are in a surrender mode before the God, and then we can look at ourselves in a detached mode. That introspection can be very honest also, and we can use it throughout the day in practicing कि भाई कल गलत हो गया था, अभी अभी मैं सुबह उठ के तय कर लिया अभी ये गड़बड़ नहीं करूँ, then you practice it। दिन में शाम के वापस आने के बाद जब प्रभु को कहते कि भाई तुम्हारी कृपा से आज मैं बेहतर इंसान बन के जी सका, फिर भी कुछ गलतियां हो गई, चलो देख लेते हैं, संभाल लेना। सो यू नो दैट वे योर टॉक विद द गॉड, your self talk, and that is what it is, typically। And actually, it is one of the best way to be grateful to Almighty for all the things He has bestowed upon us, and even to admit your mistakes in by chance if you are any. और वो एक्चुअली दिमाग को एक कंटिन्यूअस ट्रिगर मिलता रहेगा, थॉट Correct। मिलता रहेगा, जो हमें आगे के लिए, या मान लो आपको रियलाइज हुआ कि नहीं आज इसका यूज ज्यादा हुआ है, सो यू कैन चेक इट नेक्स्ट डे। Perfect, It's a perfect। continuous process. It was Very true। really wonderful. Something else you would like to suggest? Like, we have talked about so many points. Let us, consolidate it rather। Introspection. Now it's the time Let to us introspect your consolidate things. it Yeah, before we go, close this talk। First thing first, रात से शुरू करते हैं, 3-2-1। 3 घंटा पहले खाना खा ले, 2 घंटा पहले पानी पी ले, 1 घंटा पहले डिजिटल इक्विपमेंट से दूर हो जाए, किताबें पढ़। सुबह उठने के बाद वो एक जो घंटा है, जो जो वेव्स का करेक्ट इस्तेमाल करें। उस समय आपने जो गोल सेट किए हैं उसके ऊपर ध्यान दें, उस पे काम करें। और दिन भर जो हम काम कर रहे हैं उस दौरान डिजिटल वेलबींग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखें, और डिस्ट्रैक्शन कम से कम होने के लिए टाइम फेजिंग कर लें, एनी टाइम एनीवेयर के बजाय। तो उससे हम डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहेंगे और उस टूल का सही सही इस्तेमाल भी कर सकेंगे। मेरे ख्याल से ये आज के अब तक की हमारी बातों का Saransh. सारांश सा है। Absolutely. So, dear viewers, technology is a useful servant, but a dangerous master. So, it's in our hands how you are using it, how wisely you are using it, and the way and the time you are using it. So, I am really grateful to Dr. Atul sir Thank you for so much for inviting me and asking such drilling question, which has helped me to introspect myself also। नॉट ओनली दैट, ऐसे होता है कि हमें चीजें बहुत बार पता रहती है, बट लेकिन वो सामने से स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आती है, तो वो दिमाग को हिट होती है और दिल को चुभती है। और जब ये दिल दिमाग का द्वंद्व होता है, तो जिंदगी का रास्ता आसान होता है। वी रियली गेट सम न्यू पैरामीटर्स टू सेट इन लाइफ एंड टू वर्क अपॉन इट। सो रियली एक एक सेंटेंस में थोड़ा सा ऐड करना, आपने दिल और दिमाग की बात की इसलिए बिल्कुल कि प्लीज। डॉक्टर अनिल अग्रवाल है, प्रोफेसर IIM के रिटायर्ड। वो एम्पैथी के बारे में कहते हैं, हमारे को दिखता है लेकिन दुखता नहीं, इसलिए बदल नहीं होता। तो दिखना भी चाहिए और दुखना भी चाहिए। तो दिख तो रहा था, शायद आज मेरे कहने से लोगों को दुखा होगा वो। चुभा होगा। तो चुभा होगा तो फिर एम्पैथी आ गई खुद के साथ, एंड देयर इज अ स्कोप फॉर चेंज। Yes, and there is always a scope of improvement, always a scope of change. सॉरी। तो जो भी आज चुभी है, so take it positively. Appreciate yourself कि at least you have given a thought on what I am doing,
or what changes I need to implement in my life to have perfect well-being, making the use of technology. So thank you so much for your Thank precious you. time, sir. I would also like to thank our unconditional support, our pillars of strength, respected Varsha Madgulkar ma'am, Shri Shirish Kulkarni sir, respected Vaishnavi ma'am, Bhairavi ji, Shreya ji, Siddhi ji, because it's their trust and their ideas and their guidance कि जो हमें दिन ब दिन बेहतर बनाते हैं और हमें नए नए प्रयोग जो हम करना चाहते हैं वो खुले दिल से कर पाते हैं. So we are really grateful to you all. Signing off for the day. Bye bye, good night, and take care. Very Thank good you so care of much. yourself. Thank you.